Today I am going to start lesson 3 for class 10. Lesson is pair of linear equation in two variables. At first, we should know what is linear equation in two variables. Linear equation in two variables. An equation which is of the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0, is called linear equation in two variables in x and y. Ax plus by plus c equal to 0. This is the general form of linear equation in two variables where a, b and c are real numbers, but a and b are not equal to 0 and x and y are two variables. Example of linear equation in two variables are 2x plus 3y plus 3 equal to 0, 3x minus 2y minus 5 equal to 0, 4x plus 8y minus 3 इक्वल टू 0. ये सभी linear equation in two variables के examples हैं. Where 2 is the coefficient of x, 3 is the coefficient of y, 3 is a constant, 3 is a coefficient of x, minus 2 is the coefficient of y, minus 5 is a constant, 4 is the coefficient of x, 8 is the coefficient of y, and minus 3 is a constant. Now, we are going to learn about pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables or simultaneous equation. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहा जाता है. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? A system of pair of linear equation in two variables is called simultaneous equation. और
the general form of simultaneous equation a1x b1y a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये साइमल्टेनियस इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है, यानी इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं. एग्जांपल 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 3x plus 7y minus 3 equal to 0. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के का एग्जांपल है, where 2 is the coefficient of x, 3 is the coefficient of y, 5 is a constant term, 3 is a coefficient of x, 7 is coefficient of y, minus 3 is a constant term. In the general form, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 are real numbers and a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0. तो इस तरह से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है. नेक्स्ट टॉपिक, solution of pair of linear equation in two variables. For example, x plus 3 equal to 0. ये linear equation in one variable है. Variable is x. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो x का एक ऐसा रियल वैल्यू जिस वैल्यू को x के प्लेस पे हम पुट कर दें और बोथ LHS RHS अगर इक्वल हो जाता है तो x के ऐसे रियल वैल्यू को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे. जैसे x के प्लेस पे अगर -3 पुट किया जाए तो -3 + 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. सो -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x plus 3 equal to 0. ऐसे ही कंडीशन को कहा जाता है कि -3 satisfy the equation x plus 3 equal to 0. तो values of variables which satisfy the given equation is called solution of that equation. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7. तो अब इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या? तो x और y का ऐसा वैल्यू, ऐसा रियल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई करने का मतलब उस वैल्यू को पुट करने पर अगर दोनों इक्वेशन में LHS RHS इक्वल हो जाते हैं तो
वेरिएबल के ऐसे वैल्यू को ही इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे चेक करते हैं फर्स्ट केस में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, 2 प्लस एंड y के प्लेस पे -1 पुट करते हैं, 2 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। Repeat. From equation 1, x plus y equal to 1. In the place of x we put 2, and in the place of y we put -1. Then 2 plus -1 equal to this one, 2 minus 1, 1 equal to 1. And from equation 2, 2x minus 3y equal to 7. 2, in the place of x we put 2, and in the place of y we put -1. 2 to the 4, minus plus, 3 1 ja 3 equal to 7. 4 plus 3, 7 equal to 7. LHS and RHS are both equal. So these two values of x and y satisfy the given equation. So x equal to 2, y equal to -1 is solution of the given equation. क्योंकि x के प्लेस पे 2 पुट करने से y के प्लेस पे -1 पुट करने से दोनों इक्वेशन में LHS RHS इक्वल हो जा रहा है, इसीलिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहे जाएंगे। तो इस तरह से अब हम लोगों को इस लेसन में साइमल्टेनियस इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का दो प्रोसेस है। There are two methods to solve the simultaneous equation or pair of linear equation in two variables. Two methods to solve the simultaneous equation. First is algebraic method, and second is graphical method. अब हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक मेथड में जनरली 3 मेथड्स आते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग 3 मेथड से किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस सीखेंगे। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग इस थ्री प्रोसेस से, थ्री मेथड से किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। Here we are writing a question. Pair of linear equation in two variables, 3x minus 2y equal to 4, 2x plus y equal to 5. इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है? तो इसमें दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से इस दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से या तो x या तो y का वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसको इस तरह से भी कहा जाता है टू रिप्रेजेंट x इन द टर्म ऑफ y और टू रिप्रेजेंट y इन द टर्म ऑफ x, और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट यानी पुट कर दिया जाता है। To represent x in the term of y or y in the term of x and values of x and y substituted in the another equation. Then from equation 1. From equation 1, 3x minus 2y equal to 4, 3x equal to 4 plus 2y. Transposing minus 2y to RHS, x equal to 4 plus 2y by 3. इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकालें, इक्वेशन 1 से हम लोग y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या किए, represent x in term of y. Now substituting the value of x in equation 2. एक इक्वेशन से निकालेंगे x या y का वैल्यू, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर दूसरे इक्वेशन से अगर हम लोग x या y का वैल्यू निकालते तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। In equation 2, 2x plus y equal to 5. 2, in the place of x we put 4 plus 2y by 3 plus y equal to 5. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4y by 3 plus y equal to 5. LCM of 3 and 1. 3 is divided by 3, we get 1. 1 multiplied by 8 plus 4y, we get 8 plus 4y. 3 is divided by 1, we get 3. 3 into y, 3y equal to 5. Now 8 plus 4y plus 3y, 7y by 3 equal to 5 by cross multiplication. 8 plus 7y is multiplied by 1. 8 plus 7y and 3 is multiplied by 5, we get 15. 7y equal to 15 minus 8.
Transposing 8 to RHS, minus 8 equal to 15 minus 8, 7. Y equal to 7 by 7 equal to 1. Now, अब इस y के वैल्यू को इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे. Substituting value of y in equation 1, we have 3x minus 2y equal to 4. 3x, 2 in place of y we put 1 equal to 4. 3x minus 2 equal to 4. 3x equal to 4 plus 2. Transposing minus 2 to RHS, 4 plus 2, 6. X equal to 6 by 3 equal to 2. Therefore, x equal to 2, y equal to 1 are the solution of the given simultaneous equation. One more question. Question is x plus 2y plus 1 equal to 0, 2x minus 3y minus 12 equal to 0. This is equation number 1, this is equation number 2. From equation 2, 2x minus 3y minus 12 equal to 0, 2x equal to 3y plus 12, transposing minus 3y and minus 12 to RHS. X equal to 3y plus 12 by 2. Represent x in the term of y. इक्वेशन 2 से हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं. अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1. X plus 2y plus 1 equal to 0. In the place of x, we put 3y plus 12 by 2. 3y plus 12 by 2 plus 2y plus 1 equal to 0. LCM 2, 3y plus 12. 2 is divided by 1, we get 2. 2 into 2y, 4y plus 2 is divided by 1, we get 2. 2 into 1, 2 equal to 0. 3y plus 4y, 7y. 12 plus 2, 14. 2 is multiplied by 0, we get 0. 7y equal to minus 14. 14 is transposing 14 to RHS. We get minus 14. Y equal to minus 14 by 7, minus 2. Now substitute the value of y in equation 1 or equation 2. Substituting the value of y in equation 1.
we have x plus 2y plus 1 equal to 0, x plus 2 minus 2. In place of y, we put minus 2, y equal to minus 2 plus 1 equal to 0. X plus minus 2 to the 4 plus 1 equal to 0. X 1 minus 4 minus 3 equal to 0. X equal to 3. Therefore, x equal to 3, y equal to minus 2 are solution of the given simultaneous equation. Second method is elimination method. Now we are going to learn elimination method to solve the given simultaneous equation. Here we are writing a question: x plus 2y plus 1 equal to 0. Three x minus 2y plus 3 equal to 0. 4x plus 3y minus 47 equal to 0. Rules which we follow to solve the pair of linear equation by elimination method. तो एलिमिनेशन मेथड को के द्वारा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें किसी एक टर्म मीन्स वेरिएबल अगर x और y है तो या तो x वाले टर्म को सेम करेंगे या तो y वाले टर्म को सेम करेंगे. तो सेम करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अगर सपोज कीजिए कि x वाले टर्म को हमको इक्वल करना है तो देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है 3, x का कोएफिशिएंट क्या है 4. तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे. फिर से समझ लीजिए एक बार, या तो x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को इक्वल करना है. इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? अगर x वाले टर्म को इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा. यानी 4 से 3 को इक्वेशन 1 को और 3 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर y वाले टर्म को इक्वल करना है तो 2 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे चेंज करके मल्टीप्लाई करना है. सपोज कीजिए कि अगर इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 3 12x हो जाएगा और 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12x हो जाएगा. तो दोनों इक्वल हो गए. एक चीज और ध्यान रखना है, टर्म इक्वल करने के बाद इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को या तो ऐड करना होता है या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे? जिस टर्म को इक्वल किए उसका साइन अगर सेम है यानी दोनों का प्लस साइन है या दोनों का माइनस साइन है तो उस केस में दोनों का अगर प्लस साइन है या दोनों का माइनस साइन है तो उस केस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. और अगर दोनों का अपोजिट साइन है, दोनों का अपोजिट साइन है मतलब एक का माइनस है एक का प्लस, अगर एक का माइनस है एक का प्लस है तो वहां पर उसको ऐड करेंगे. दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाएगा. इक्वल साइन, सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन.
ऐड। ठीक है, ये याद रखना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर x वाले टर्म को अगर इक्वल करते हैं तो दोनों का साइन तो सेम है, तो अगर x वाले टर्म को आप इक्वल करेंगे तो दोनों को फिर माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। अगर y वाले टर्म को आप इक्वल करते हैं तो दोनों का साइन अपोजिट है, तो उस केस में दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोग देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई equation 1 by 4 and equation 2 by 3 and same sign है, subtracting equation 2 from equation 1 we have। तो चलिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12x, 4 2 जा 8y, 4 3 जा 12 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, 47 इंटू 3 इक्वल टू 141 इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज द साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 12x प्लस 12x माइनस कैंसिल। थ्री थ्री जा 9, 3 3 जा 9y, माइनस 8y माइनस 9y माइनस 17y, 12 का साइन प्लस 141 का साइन भी प्लस, दोनों ऐड हो जाएगा। माइनस 17y इक्वल टू माइनस 153, 153 को ट्रांसपोज किया गया, ट्रांसपोजिंग 153 टू RHS, y इक्वल टू माइनस 153 बाय माइनस 17, y इक्वल टू 9। नाउ अब इस y के वैल्यू को इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x minus 2 in place of y we put 9 plus 3 equal to 0, 3x 2 9 जा 18 plus 3 equal to 0, 3x 3 minus 18 minus 15 equal to 0, 3x equal to 15, x equal to 15 by 3, 3 5 जा 15 5, therefore x equal to 5, y equal to 9 is the solution of the given simultaneous equation. One more question.
3x plus 2y equal to 12, 5x minus 2y equal to 4. Here, coefficient of x is 3, coefficient of x is 5. या यहाँ ये भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर y का जो टर्म है उसका कॉफिशिएंट सेम है, तो यहाँ कोई एक टर्म को इक्वल करना है और यहाँ पर एक टर्म आपका इक्वल है। साइन देखेंगे दोनों का, तो दोनों का साइन देखिए, एक का प्लस है एक का माइनस है, यानी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में इसको ऐड कर देंगे सिंपल। यानी यहाँ पर आपको इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका एक टर्म यहाँ पर इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 3x plus 2y equal to 12, 5x minus 2y equal to 4, plus 3x plus 5x, 8x, 2y minus 2y plus cancel, 12 plus 4, 16, x equal to 16 by 8, 8 to the 16। अब x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1, 3x plus 2y equal to 12, 3 multiplied by 2, in place of x we put 2 plus 2y equal to 12, 3 to the 6 plus 2y equal to 12, 2y equal to 12 minus 6 equal to 6, y equal to 6 by 2 equal to, therefore x equal to 2, y equal to 3 is the solution of the given simultaneous equation. One more question. Two x minus 3y equal to 13, 7x minus 2y equal to 20. This is equation number 1, this is equation number 2. Here, the coefficient of x is 2, coefficient of x is 7. In equation 1, coefficient of x is 2, and in equation 2, coefficient of x is 7. Now we multiply equation 1 by 7 and equation 2 by 2 to equalize the first term of the given two equation. Multiplying equation 1 by 7 and equation 2 by 2, and दोनों का सेम साइन है, subtracting equation 2 from equation 1 we have, तो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21y, 13 7 जा 91,
2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 7 जा 14x, 2 2 जा 4y, 22 जा 40। माइनस करते हैं, चेंज द साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 14x प्लस 14x माइनस कैंसिल, 4y का साइन प्लस 21y का साइन माइनस, तो 4y में 21y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 17y माइनस 17y, और 91 में 40 माइनस करते हैं 51, देन y इक्वल टू 51 बाय माइनस 17, 17 3 जा माइनस 3। Now substituting the value of y in equation 1. In any equation, we put the value of y. 2x minus 3y equal to 13. 2x minus 3 minus 3. In place of y, we put minus 3 equal to 13. 2x minus minus plus 3 3 is 9 equal to 13. 2x equal to 13 minus 9 equal to 4. X equal to 4 by 2 equal to, therefore x equal to 2, y equal to minus 3 is the solution of the given simultaneous equation.